Hello students, welcome back in our channel Concept Era. In this video, we will study about the principles of given by Mr. Henry Fayol. In our previous video, we have studied about principles and scientific techniques given by F.W. Taylor. So, कहीं भी मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे कॉन्सेप्ट एरा पर नई नई वीडियोस के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ. तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ फेयोल, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. Here are 14 principles of management which is given by Henry Fayol. As earlier I told you that these principles are not overnight creation. These principles are made by Mr. Henry Fayol after the so many research and observation in his working style, working era, और उसके बाद इन्होंने हैंड्स प्रूव्ड करते हुए कुछ 14 प्रिंसिपल्स बनाए. एंड दीज 14 प्रिंसिपल एक्ट एज अ जनरल गाइडलाइन विच वी आर हैविंग टू फॉलो इन आवर रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन. सो अगर हम इस चैप्टर की बात करते हैं तो ये चैप्टर 7 to 8 मार्क्स का आता है. अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल पर जाते हैं, हेनरी फेयोल का पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क. In division of work, Henry Fayol is saying that the whole work must be divided into small units according to the employees' qualification, interest, experience, and efficiency, ability, and so on. And it leads to स्पेशलाइजेशन ऑल्सो. जब एक बहुत बड़े वर्क को हम बहुत स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं तो द होल वर्क जो होता है वो जब स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड होने के बाद किसी को हम डिवाइड कैसे करेंगे, हम उसकी एक्सपर्टाइज के अकॉर्डिंग, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसके एजुकेशन के अकॉर्डिंग, उसके प्रीवियस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग. एंड इट ब्रिंग्स हार्मनी and it leads to product specialization in our organization so that the work should be completed effectively and efficiently. This is our first principle, that is the division of work. Next principle, authority and responsibility. Authority and responsibility means when we are giving authority to someone, we should have to give the responsibility to him or her also. Authority means power to take decision. When we are having any authority, so we should have a power to take decision that what we are going to do and what to do. And if we are talking about the responsibility means obligation to do the work in assigned time. And Fayol says that there should be a balance between authority and responsibility. If authority is over without responsibility, then it will be misused. And if responsibility is given without any authority, so it cannot be completed without authority. जैसे इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं कि आपने किसी को कुछ पावर दी लेकिन उसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो वो उसको मिसयूज़ करेगा. आप इसको एक केस स्टडी के रूप में भी कर सकते हैं कि आपके पास एक काम को करने की प्रॉपर एक पूरी पावर है लेकिन आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो आप उस पावर को मिसयूज़ करेंगे. लेकिन उसकी जगह पर आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है बट पावर नहीं है तो आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कभी भी फुलफिल नहीं कर पाएंगे बिकॉज द लैक ऑफ अथॉरिटी. Our third principle is discipline. If we are talking about the discipline means when you are doing a work systematic manner with a proper code of conduct, proper law, rules, regulation and all, and it gives the assurity towards the statement or agreement which we have given to our employees or our colleagues.
Obedience to organization rules and agreements require good superior, clear agreement and judicious penalties also. Judicious penalties का मीन्स इसमें आता है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो सभी के लिए सेम होने चाहिए. आप कहीं भी पार्शल नहीं होने चाहिए एज पर द hierarchy of the organization. If there is a rule of no leave zone or rule of late coming, rule of late completion of task, any kind of rule is there, so that rule should be equal for everyone. This is called discipline. If we are talking about agreements, for example, मैं हमेशा क्लास में एग्जाम्पल देती हूँ कि मैंने आप लोगों से एक एग्रीमेंट किया that if you will score more than 50 in your pre-boards, then I'll give you 20 in your practical examination. But anyhow, you have just scored 48 or 49 marks. You are just little bit far from that. But मैं अपने एग्रीमेंट से स्टेप बैक हो जाती हूँ that I am not giving any marks to you because you have not completed the task on 50. So at that time you will feel cheated. So it is discipline that I should complete my agreement, my statement with you. This is called डिसिप्लिन. और ऐसी काफ़ी सारी केस स्टडीज़ आती हैं कि जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ स्टेटमेंट अप्रूव किया कि अगर आप ओवर वर्क करते हो, ओवर टाइम करते हो, टास्क कंप्लीट प्रॉपरली कर देते हो, तो दे विल प्रोवाइड यू बोनस, एक्स्ट्रा incentives and all. But after completion the task management denied. So which principle has violated by the management? Then this is the discipline. So this is the discipline. Next principle पर अगर हम आते हैं, this is the unity of command. Unity of command says that there should be a one boss at a time. If there are more than one boss at the same time on a same worker, then worker will get confused कि वो किसका काम पहले करेगा. Though this is the wrong approach. At that time एक समय पर एक ही superior एक subordinate के ऊपर होना चाहिए, so that the worker will complete his or her task on time with the effectively and efficiently. और वो अपना 100% आपको देगा. Look, each employee receive order from one superior only, prevents confusion, dual subordination and authority conflicts. इस केस में superiors के लिए भी एक लाइन आती है that superiors के बीच में confliction हो जाएगा and जो subordinates है वो अपना 100% आपको कभी भी नहीं दे पाएंगे due to the confusion that whose work will go first. This is the principle of unity of command. इसका आप एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं, लाइक आप एक क्लास में पढ़ते हैं एंड यू पीपल आर टेकिंग मोर देन 3 to 5 क्लासेस इन अ डे सब्जेक्ट वाइज, एंड एवरी सब्जेक्ट टीचर आपको फोर्स करता है सेम टाइम पर आपको अपना नोटबुक देने के लिए, कंप्लीशन के लिए, और सेम टाइम पर इवैल्यूएट चेक करेक्शन के लिए. इन दैट केस यू विल गेट कन्फ्यूज बिकॉज आपके लिए सभी सुपीरियर्स, सभी टीचर्स सेम हैं. अब वहाँ पर आप अपनी 100% एफिशिएंसी किसी में भी नहीं कर पाएंगे और आप ना चाहते हुए भी एक भी सब्जेक्ट का काम पूरा नहीं होगा आपके चाहते हुए भी, और ना चाहते हुए भी आपको टीचर पनिश करेगा या प्रॉब्लम आएंगी. तो इस केस को आप इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं. ऐसे ही एक एम्प्लॉई है, अगर एक एम्प्लॉय को एक साथ आप 2 से 3 4 कमांड्स दे रहे हैं और वो अपना कोई भी काम टाइमली कंप्लीट नहीं कर पाएगा ड्यू टू द लैक ऑफ वर्क, लैक ऑफ आप कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन. नेक्स्ट आता है हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये कहता है कि 1 यूनिट 1 प्लान, 1 यूनिट 1 हेड, 1 हेड 1 प्लान. आप जिस यूनिट में वर्क कर रहे हैं आप उसी के साथ वर्क करें. आपका जो डायरेक्शन है दैट direction must go with your organization, not in your personal way, not in any other way. अगर आप किसी other way में जा रहे हैं that means you are not with your unit. 1 unit 1 plan, 1 head 1 plan. Each group of activities with same objective must have 1 head and 1 plan. Prevent overlapping activities. Like
फॉर एग्जाम्पल आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हिस्सा हैं, परचेज डिपार्टमेंट से आपका कोऑर्डिनेशन चलता है, बट यू आर गोइंग टू पोक इन अ मार्केटिंग डिपार्टमेंट, आपका वहाँ बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चल रहा है, यू आर हैविंग अ कीन इंटरेस्ट इन अ मार्केटिंग डिपार्टमेंट. इन दैट केस जो आपका प्रोडक्शन मैनेजर है वो कहेगा कि पहले अपनी यूनिट में ध्यान दीजिए. यू आर गोइंग बैकवर्ड इन योर वर्क and you are moving to a forward in other department work. So यहाँ पर ये confliction होगा, so that आपका जो direction है वो आपके personal अपने particular department में होना चाहिए. This is called unity of direction. Next, our sixth principle is subordination of individual interest to general interest. That means, अगर मैं आपको बिल्कुल बेसिक हिंदी में बताती हूँ, आपका जो इंटरेस्ट है पर्सनल वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट की तरफ होना चाहिए, ना कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट की तरफ. इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा केस बताती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट हैं और आपको पता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टास्क चल रहा है. लाइक इफ़ यू आर इन कंपनी तो आपके यहाँ एक कोई टास्क है जिसको ऑन टाइम कंप्लीट करके ऑर्डर कंप्लीट करना है, या आप किसी आईटी सॉफ्टवेयर में हैं तो आपको एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर टाइम पर डेवलप करके देना है. आप कुछ भी ले सकते हैं, बट इन बिटवीन आपका एक पर्सनल वर्क आ गया आपकी फैमिली से रिलेटेड, जिसको हम इमरजेंसी नहीं कह सकते हैं. योर फैमिली इज़ गोइंग ऑन वेकेशन एंड यू वांट टू गो, और आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी चीज़ का बहाना बनाया और एंड यू जस्ट मूव फॉर vacation. In that case, which principle has been violated? कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हुआ? यहाँ पर आएगा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. क्योंकि हमने इसमें जो एक बेसिक की लाइन है एनसीईआरटी की वो यही है कि ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट मस्ट बी सुपरसीड रेदर देन द पर्सनल इंटरेस्ट. तो आपको वहाँ पर आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपकी ड्यूटी बहुत पहले बनती है कि आपको वहाँ पर अपना टास्क टाइमली कंप्लीट करके देना था, बट आपने अपने पर्सनल इंटरेस्ट को सुपरसीड किया रेदर देन द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट. So here are the line. Organizational goals supersede individual interest. Manager must be exemplary. No misuses of power for पर्सनल बेनिफिट्स. किसी भी मैनेजर को, किसी भी एम्प्लॉय को अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन को साइड बाय नहीं करना है. तो ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट मस्ट बी सुपरसीड रेदर देन द इंडिविजुअल इंटरेस्ट. अगर मैं अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए ऑर्गेनाइजेशन को लॉस देती हूँ इन एनी ऑफ द वे, सो दैट्स अ रॉन्ग वे.